Good morning, students. In the last class, we have read the chapter 8, A Short Monsoon Diary, written by Ruskin Bond. Now today it's turn to do the question answers, the exercises of that particular chapter, and move ahead. So let's do the exercises of A Short Monsoon Diary. As you can see on the screen, there are the textual questions and their answers shared with you. The first question is, look carefully at the diary entries for June 24, 25th, August 2 and March 23. Now write down the changes that happen as the rain progresses from June to March. In the last week of June, the monsoon mist comes up and everything becomes invisible. It covers hills and spreads silence. The rain intensifies means increases by August beginning and comes down in a steady downpour by March end. The winter rain too is over and a hailstorm clears the sky. The second question is, why did the grandmother ask the children not to kill the Chuchundar? The grandmother believed that Chuchundar brought good fortune and money, thus they should not be killed. The third is, what signs do we find in nature which show that the monsoons are about to end? The cobra lily seeds turning red, the ferns turning yellow, and a hailstorm are signs of the end of monsoons. A rainbow is formed in the sky. So these are the answers of question 1, 2 and 3. The fourth question is about the fill in the blanks. There are 6 fill in the blanks given, and subsequently 6 answers have been shared with you, so you can do it from here. And then the question number 5 is, although tin roofs are given to springing unaccountable lakes, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. So why has the writer used the word springing? The leaks happen suddenly. Since the word springing conveys the same meaning, the writer has used it here. Same as question 2, 5th, Roman number 2, 5th, Roman number 3 answers have been shared with you. You can see from here and write down in your notebook. The 6th question is, ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताओ जो बारिश का मौसम लेके आता है. तो continuous and steady rain makes life miserable. It can cause mold and fungus in food and stored grains or leather. It can spoil cotton and other natural fibers and make them soggy. Roofs can spring leaks and waterlogging can happen in low-lying areas in the absence of proper drainage. Many such things can happen due to continuous rain. The 7th question is, what is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end? So when a cobra lily first blooms, it signifies the beginning of the monsoon season, and when its seeds turn red, it indicates the end of monsoons. So you can write all these answers, and a particular question I am giving you as your homework. This is a writing portion. You can see in your textbook that there is a writing portion, and the writing portion has actually 2 questions given. Question number 1, and then there is a choice of that particular question. But I am giving you the homework of only number 1. As you can see on the screen, the monsoons are a time of great fun and even a few adventures. Playing in the rain and getting wet, wading through knee-deep water on your way to school, water flooding the house or the classroom, power cuts, and so on. Write a paragraph describing an incident that occurred during the rains which you can never forget. तो स्टूडेंट्स, बारिश के मौसम में बहुत सारी हमें बहुत सारे मज़े भी, मतलब मौज मस्ती भी बच्चे करते हैं.
वैसे तो बारिश का जो मौसम होता है वो एक प्रकार का परेशानी पैदा करने वाला मौसम है, लेकिन बच्चे इससे काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे बारिश में भीगते हैं, घुटनों के जो है घुटनों तक पानी में डूब जाते हैं, और क्लासरूम में जब पानी या घरों में पानी घुस जाता है तो बच्चे इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। यहाँ तक कि लाइट जाने को भी बच्चे इंजॉय करते हैं। खैर, आपको एक पैराग्राफ लिखना है विद इन 7 to 10 लाइन्स, जिसमें आपको बताना है कि बारिश का कोई एक ऐसा दिन जिसे आप भूल नहीं सकते। ये मेंशन्ड जो इंसिडेंट्स उस दिन हुए होंगे या और भी जो इंसिडेंट्स हुए होंगे वो आप भूल नहीं सकते, ये आपको लिखना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क. So now we are going to start a new chapter, which is On the Grasshopper and Cricket, written by John Keats, a very famous poet. Unlike the ant and the cricket, which you have read in your textbook, page number 21, which tells a story, this is a nature poem. In it, the grasshopper and cricket do not appear as characters in a story. Rather, they act as symbols, each suggesting something else. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. Who sings the song? पेज 21 में जो हमने एंट एंड द क्रिकेट कहानी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि एज ए सिमिली, नॉट एज ए सिमिली, एज ए मेटाफॉर बोल लो, जो है एंट और क्रिकेट को यूज़ किया गया था, उनको सिम्बोलाइज किया गया था। एंट और क्रिकेट को एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया था उस पोएम में, और बताया गया था कि एंट ने जो है क्रिकेट को क्या सबक दिया था, क्या सिखाया था। तो वो उन एंट और क्रिकेट की जो पोएम थी हमने पेज 21 में पढ़ी थी, उसमें तो उन दोनों को पर्सोनिफाई किया गया था, इंसानों की तरह ट्रीट करके समझाया गया था। लेकिन इस पोएम में ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट में पर्सोनिफिकेशन नहीं है, उनको पर्सोनिफाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके बारे में कुछ उनके द्वारा कुछ सीख दी जा रही है, उनके द्वारा सर्दी और गर्मी इन दोनों मौसम की कुछ जानकारी दी जा रही है। लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये गाना कौन गा रहा है, आपके हिसाब से ये गाना कौन गा रहा है। देखते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट एंड विद द हॉट सन। स्टूडेंट्स, फेंट का मतलब होता है कमज़ोर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। फेंट मीन्स वीक, ठीक है। तो द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर वीक डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद हॉट समर एंड हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज। हेज का मतलब होता है, आप लिख सकते हो झाड़ियों की दीवार, या आप लिख सकते हो फेंस ऑफ बुशेस, ठीक है। फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउन मीट। माउन का मतलब कट, मीट का मतलब मीडो। तो माउन मीट का मतलब होगा कट गार्डन। कट गार्डन, ठीक है। That is the grasshoppers. He takes the lead in summer luxury he has never done. With his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. Weed का मतलब होता है wild plant. तो ये आप देख सकते हो, मैं कुछ मीनिंग्स लिखा हूँ। फेंट मीन्स वीक,
hedge means fence of bushes और fence of shrubs. Mound meet का मतलब a nicely cut garden और weed का मतलब wild plant. So अब मीनिंग समझते हैं. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. पृथ्वी के बारे में जो भी कविताएं लिखी जाती हैं वो कभी मरती नहीं है. चाहे आसमान के पक्षी कमजोर पड़ने लगे गर्म दोपहर में, या ठंडक में, शाम की ठंडक में वो रेस्ट करते हुए मिले, शाम की ठंडक में वो रेस्ट करते हुए मिले, लेकिन पक्षी भले ही कमज़ोर हो या रेस्ट करते हुए मिले या छुपते हुए मिले, एक आवाज़ हमेशा दौड़ती रहती है. फ्रॉम हेज टू हेज विदाउट द न्यू अबाउट द न्यू माउन मीड, एक आवाज़ हमेशा चलती रहती है, दौड़ती रहती है. कहाँ? एक आवाज़ जो झाड़ियों से भरी जो दीवारें हैं वहाँ से होते हुए खूबसूरती से जो काटा हुआ एक खूबसूरत सा गार्डन है, मतलब जिसकी घास की बड़ी खूबसूरती से कटाई हुई है, ऐसा एक बागीचा है. वहाँ पर दीवारों की झाड़ियों से होते हुए खूबसूरती से घास के कटे हुए मैदानों तक जो आवाज़ गूंजती है या चलती है, डैट इज़ द ग्रास हॉपर, इट टेक्स द लीड. वो आवाज़ ग्रास हॉपर की होती है. वो आवाज़ ग्रास हॉपर नाम के कीड़े की होती है. इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन with his delights, for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant wheat. ग्रास हॉपर एक बहुत ही खूबसूरत सा हरे रंग का, जिसको हम लोग एक तरह से हरे रंग का टिड्डा बोल सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा लंबे आकार का हरे रंग का कीड़ा, लाइट ग्रीन कलर का कीड़ा, ये गर्मी की दोपहर में या गर्मी की शाम को ये झाड़ियों से होता हुआ, मैदानों से होता हुआ बहुत तीव्र गति से उड़ता ही रहता है. एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ क्रिएट करता है ये, क्योंकि इसको गर्मी का मौसम बहुत पसंद है. ये गर्मी का उत्सव मनाता है, ये गर्मी के मौसम को इंजॉय करता है और खूब हंसता है, खेलता है. और जब खूब हंसने खेलने के बाद ये थक जाता है तो ये किसी खूबसूरत से जंगली पौधे के ऊपर आकर के बैठ जाता है. तो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इस पोएम में 2 ही पैराग्राफ है. पहला पैराग्राफ जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट नॉट पैराग्राफ, रादर वी शुड से स्टैंजा. पोएम के पैराग्राफ्स को स्टैंजा कहा जाता है और स्टोरी के पैराग्राफ को हम पैराग्राफ कहते हैं. तो कहना सही होगा स्टैंजा, STANZA. ठीक है, हम लोग पोएम के पैराग्राफ को क्या कहते हैं? देखो मैं साइड से क्रॉस करके लिख रहा हूँ, स्टैंजा. ठीक है, पोएम के पैराग्राफ्स को हम लोग स्टैंजास बोलते हैं. सो फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी का जो गीत है वो कभी खत्म नहीं होता. बेतहाशा गर्मी की दोपहर में जब पक्षी थक जाते हैं और शाम के समय वो कहीं पर छुप करके आराम करते हैं, तब भी एक आवाज़ हमेशा गूंजती है. वो आवाज़ झाड़ियों से होते हुए मैदानों तक जाती है. वो आवाज़ हरे रंग के टिड्डे की होती है, ग्रास हॉपर की होती है. ग्रास हॉपर एक ऐसा कीड़ा जो गर्मी के मौसम को खूब एंजॉय करता है, गर्मी को खूब पसंद करता है, और जब सारा दिन खेलने के बाद, उड़ने के बाद, गाना गाने के बाद, गीत गाने के बाद वो थक जाता है तो किसी खूबसूरत से जंगली पौधे के ऊपर आकर के वो विश्राम लेता है. अब ये जो सेकंड स्टैंजा आप देख रहे हो, दिस इज द ओनली सेकंड स्टैंजा एंड दिस इज द एंड ऑफ द पोएम.
इस सेकेंड स्टैंजा में ठंड के मौसम की या शीत ऋतु की बात की जाएगी। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन ए लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट has wrought a silence from the stone there shrills the cricket's song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills। फिर से थोड़ा सा मुझे ब्रश यूज करना पड़ेगा। तो सीजिंग का मतलब होता है एंडिंग, सीजिंग का मतलब एंडिंग होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद फ्रॉस्ट का मतलब एक प्रकार से एक प्रकार की आइस होती है। फ्रॉस्ट मीन्स ए टाइप ऑफ आइस। रॉट का मतलब मेक होता है, बनाना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, श्रिल। श्रिल का मतलब होता है ए टाइप ऑफ साउंड। श्रिल का मतलब साउंड होता है, एक हाई साउंड, ठीक है। हाई साउंड को श्रिल कहा जाता है। और उसके बाद ड्राउसीनेस का मतलब होता है ऊँघना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ऊँघना। ये वर्ड आपने सुना होगा, मतलब नींद में होना। ये मीनिंग्स मैंने लिखे। तो सीजिंग का मतलब एंडिंग, फ्रॉस्ट का मतलब थिन आइस या सिंपली आइस, रॉट का मतलब मेक, श्रिल्स का मतलब हाई साउंड, ड्राउसीनेस का मतलब ऊँघना, ठीक है। अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। पृथ्वी का जो गीत है, पृथ्वी की जो कविता है, वो कभी भी जो है खत्म नहीं होती है। जब शांत एकांत भरा ठंड का मौसम होता है, ठंड की जब शाम होती है, जहाँ हम लोग पतली बर्फ की चादरें देखते हैं जो ठंड के मौसम ने क्रिएट की होती है, ठंड के मौसम ने जो पतली चादरें क्रिएट की होती है और वो जगह जगह पत्तों में या पौधों के ऊपर देखने को मिलती है, उस एकांकी ठंड के मौसम में जहाँ फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, ऐसा ठंड का मौसम जहाँ माने जो है कपाने वाली ठंड का मौसम, जिसमें पत्थर भी एक प्रकार से आवाज़ पैदा करते हैं। कहने का मतलब पत्थर भी कांपते हैं एक तरह से। ऐसा ठंड, कड़कड़ाके की ठंड जब होती है, उस समय शाम का माहौल एकदम शांत होता है। उस समय क्रिकेट गाना गाते हैं। क्रिकेट एक प्रकार का इंसेक्ट है जो बड़ा ही ऊंचा साउंड प्रोड्यूस करने वाला कीड़ा होता है। बहुत ऊंची आवाज़ ये प्रोड्यूस करता है। तो किसी भी ठंड के जो है कड़कड़ाती ठंड के मौसम में शाम को कीड़ा, जो क्रिकेट कीड़ा होता है, ये बहुत ऊंचा साउंड क्रिएट करता है। और उस ऊंचे साउंड में जब लोग नींद में होते हैं, हाफ लॉस्ट मतलब ड्राउसीनेस हाफ लॉस्ट, उसका जो साउंड है वो लोगों की नींद को लगभग आधी खत्म कर देता है। द ग्रासहोपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स। तो क्रिकेट का जो ऊंची आवाज में गाया हुआ गीत है ठंड की एकांकी शाम में, वो अक्सर हमारी नींदें उड़ा देता है। दूसरी तरफ हमने ग्रासहॉपर के बारे में पढ़ाई है कि ग्रासहॉपर जो है वो तो जो है हिल्स में, ग्रासी हिल्स में या श्रब्स में, या फिर वो जो है वीड्स में पाया जाता है। तो पोयम के द्वारा पोएट ने ये समझाने की कोशिश की है कि जहाँ एक तरफ ठंड मज़ेदार है, वहाँ दूसरी तरफ जो है गर्मी भी मज़ेदार है। गर्मी की मौसम में कुछ जानवर बहुत इंजॉय करते हैं, दूसरी तरफ ठंड के मौसम को भी कई जानवर इंजॉय करते हैं। नाउ आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन आंसर्स विथ यू।
You have to do the question answers in your notebook. Discuss with your partner the following definition of a poem. Uh, a poem is made of words arranged in a beautiful order. These words, when read aloud with feeling, have a music and meaning of their own. The definition truly captures the soul and essence of a poem. Poetry represents a field of literary composition where rhyme, rhythm, and figures of speech are arranged in a soul-lifting way that makes a thought or scene come alive in the reader's imagination. उसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स. what is it made of? The poetry of earth is composed of sounds found in nature, like rustling of leaves, या pattering rain, whistling boughs, bird song, gurgling streams, etc. ये आप लिखोगे. Find lines in the poem that match the following. में 1 का आंसर होगा he has never done with his delights, और 2 का होगा the cricket song in warmth increasing ever. Which word in the stanza 2 is opposite to meaning of frost? तो लिखना warmth. और 5th क्वेश्चन जो है वो है mention each with its representative voice का जो है, there are 2 main seasons, summer and winter. The representative sound of summer is that of the grasshopper and that of winter is cricket. ये इस पोएम का एसेंस भी है. क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो इस पोएम का भी एसेंस है कि जो गर्मी का मौसम है वो ग्रासहॉपर को संबोधित करता है, या ग्रासहॉपर को का माने ग्रासहॉपर का सांकेतिक मौसम जो है वो गर्मी का मौसम है, और क्रिकेट का सांकेतिक मौसम जो है वो ठंड का मौसम है. यानी क्रिकेट का मौसम, यानी क्रिकेट जो है वो ठंड के मौसम का जो है प्रतीक है, और ग्रासहॉपर गर्मी के मौसम का प्रतीक है. सो दिस इज योर this chapter's textual questions which you have to do in your notebook. That's all for today. On the next class we will do chapter 9, the great stone face first. Okay, thank you very much.